Dear students, welcome. In this particular presentation, we are going to discuss about chemical equations, the advantages and the limitations of chemical equations and balancing of chemical equations. So let's get started. Writing chemical equations, we have already discussed this. So let us have a brief recap. In chemical reactions under normal condition, as we know that matter is neither created nor destroyed, and hence the mass before and after a chemical reaction remains unchanged, that is same. That means the total mass of the reactant should always be equal to the total mass of product, and therefore every chemical equation has to be balanced. That means if there is a skeletal chemical equation in which the mass of the reactant and the product is different, we have to balance it, because every chemical reaction obeys the law of conservation of mass, and therefore every skeletal equation has to be balanced. Now we have already discussed about these signs and the symbols which are used in chemical equations, and today we are going to discuss some of the examples. Right, now what are the major points which have to be attended to when we are writing chemical equations? The chemical equation in which the number of atoms of each element is equal in reactant and products are known as balanced chemical equations, or in other words, the chemical equations in which the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products are known as the balanced chemical equation. So total mass of reactant is always equal to total mass of the product as per the law of conservation of mass. The chemical equations in which the number of atoms of each element in reactant and product are not equal are called as unbalanced or skeletal chemical equations, right? Or in other words, the chemical equations in which the mass of the reactants is not equal to the mass of the products are the skeletal or unbalanced chemical equation, and we have to balance them, right? Now we are going to discuss about some examples of chemical equations in which we have used the symbols of the states and the symbols which we had discussed earlier. Right, now in this particular equation, let me take the pointer. This is lead nitrate. इसका नाम क्या है? Lead nitrate. Now this delta sign is known is for the heat. So when lead nitrate is heated, so heat is supplied, so this is an endothermic reaction. Now this lead nitrate on heating, it decomposes into lead oxide. Now lead oxide is solid, right? Plus there are two gases which are evolved or released. This is the nitrogen dioxide. So now it is gaseous, that means it is in gaseous state, physical state, and oxygen, as you know, is a gas once again. So these the symbols of the physical states of the reactant and product also give us information. Now this is known as ethene. Ethene once again is a gas. When it combines with hydrogen gas, now nickel here is acting as a catalyst. So the nickel is catalyst in this reaction. Now what are catalysts? Catalysts are those substances which alter or change the rate of a chemical reaction without themselves undergoing any chemical change, right? So nickel is acting as a catalyst here, and 150 degree Celsius, right, degree का निशान नहीं है, 150 degree Celsius is the temperature at which this reaction takes place. So nickel as catalyst, that means the presence of nickel catalyst, and this temperature 150 degree is the reaction conditions. Now these reaction condition, that means the temperature, specific temperature, and the specific catalyst has to be mentioned on the arrow, and without these reaction conditions this particular reaction will not take place, right? So these are also very important. Now here sodium sulfate is in aqueous form. Now what is aqueous form? That means sodium sulfate in the crystalline form has been dissolved in water as a solvent. मतलब पानी में घोला हुआ है. सोडियम सल्फेट को हमने सॉल्यूट के फॉर्म में लिया और उसको पानी को सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया और पानी में हमने इसको डिसॉल्व किया हुआ है. Similarly, barium chloride we have dissolved in water. So therefore we have put the sign aqueous, right? Now
बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट इज फॉर्म, बेरियम सल्फेट. नाउ बेरियम सल्फेट सॉलिड है. असल में ये क्या होता है, इट इज बेसिकली अ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं बिकॉज बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनता है. और प्रिसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड. व्हाट इज अ प्रिसिपिटेट? Precipitate is an insoluble substance formed as a result of a chemical reaction. So बेरियम सल्फेट का precipitate बनता है. ये आगे हम डिटेल में भी इस रिएक्शन को लेने वाले हैं. एंड NaCl is present as an aqueous form. ठीक है, और NaCl क्योंकि वो soluble होता है वाटर में, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहता है. Now what are the advantages of using chemical equations? chemical equation जो हम यूज कर रहे हैं, एक तो क्या हो सकता है, हम केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर दें कि lead nitrate when it is heated what is produced, lead oxide is produced and nitrogen dioxide brown color fumes are produced and oxygen gas is produced. ऐसे हम टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो केमिकल इक्वेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? सो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. नाउ द रिप्रेजेंटेशन बिकम्स इजियर. ठीक है, इट सेव्स टाइम एंड स्पेस इन राइटिंग. तो अगर मैं टेक्स्ट में बोलूँगा तो मुझे 4-5 मिनट लगेंगे एक ही रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, लिखने के लिए, और मुझे राइटिंग के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए. लेकिन केमिकल इक्वेशन की वजह से मैं बहुत छोटी सी जगह में भी इस पूरे रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रादर. राइट. सेकेंड इज, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू बी यूज्ड कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली. सो व्हाट आई कैन, तो अभी मेरे को क्या मालूम चल रहा है इसमें, इफ आई टेक 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, मैं अगर 2 मोल लेता हूं लेड नाइट्रेट के और उसको हीट करूंगा, सो आई विल हैव 2 मोल्स, द प्रोडक्ट्स विल बी 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये मिलेंगे मुझे. राइट. तो अब मुझे कितना लेड ऑक्साइड चाहिए उसके हिसाब से मैं लेड नाइट्रेट को ले सकता हूं, मुझे रेशियो मालूम है. राइट. तो ये भी एक एडवांटेज है. देन द थर्ड इज, द सेम केमिकल symbols are used all over the world and therefore the scientists face no difficulty in understanding chemical equation. Right. तो अब अगर यहाँ से इंडिया से मैं कहीं चले गया, समझ लो मैं अमेरिका चले गया, तो वहां पे भी अगर मैं केमिकल इक्वेशंस देखूंगा देन दे विल बी दी सेम. वहां पे सेम यही इक्वेशंस मिलेंगी. यहाँ पे सॉलिड है का एस है तो वहां पे भी सॉलिड का एस है, गैस है, मतलब सेम सिंबल्स और फॉर्मूलेज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर दी सेम. सेम फॉर्म में मिलेगी, सेम प्रोटोकॉल फॉर्मेट में मिलेगी, इसलिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज इक्वेशन रिमेन इन द सेम फॉर्म. राइट. सो दीज आर द मेजर, we can say major advantages of using the chemical equations. Right. I hope that you have understood. Right. So now let us go to the limitations. What are the limitations of केमिकल इक्वेशन? सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो. हर एक चीज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, तो इसकी भी अच्छाइयाँ थी कुछ, तो बुराइयाँ भी हैं. बुराइयाँ मतलब इसकी कमियाँ हैं, बुराइयाँ नहीं बोल सकते हम, कमियाँ. अ केमिकल इक्वेशन, ई क्यू, हाँ ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, आप ध्यान रखिए ना. अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, देयरफॉर इट डज नॉट, दैट मीन्स इट डज नॉट से वेदर द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन आर सॉलिड, लिक्विड और गैस. असल में क्या होता है, हमने अभी जो इक्वेशंस पढ़ी, जो मैंने एग्जांपल बताया, उसमें हमने डेलिबरेटली मेंशन किया है फिजिकल स्टेट्स किसका, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का. लेकिन ज्यादातर जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, ठीक है, और ओवरऑल जब आप केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो उनमें आपको प्लेन इक्वेशंस दी हुई होंगी, केमिकल इक्वेशंस. उन केमिकल इक्वेशंस में आपको नॉर्मल केस के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट जनरली नहीं डिस्क्राइब किए होते हैं. तो अगर नहीं डिस्क्राइब किए तो आपको भी उसकी इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई नई इक्वेशन पढ़ी तो आपको इक्वेशन पढ़ते ही यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली नो दैट विच ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व्ड इज इन विच फिजिकल स्टेट, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये इसकी लिमिटेशन है. द सेकेंड लिमिटेशन इज इट डज नॉट इंडिकेट, दैट मीन्स द केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब. राइट. तो नॉर्मल केस के अंदर, फिर से मैं बता रहा हूं, जब हम केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल केस के अंदर जब वो इक्वेशंस दी होती है तो उसके अंदर हमको ये नहीं मालूम चलता कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन, या वो एब्जॉर्ब कर रहा है या वो रिलीज कर रहा है. मतलब दैट मीन्स द रिएक्शन इज आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक में तो फिर भी हमको मालूम चलता है कि हीट का निशान बना होता है या हीट लिखा होता है या टेम्परेचर लिखा होता है.
तो हमको मालूम चल जाता है कि वो एंडोथर्मिक है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ज़्यादातर केस में नहीं मालूम चलते कि हीट इवॉल्व नहीं लिखा होता। तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी इसकी वीकनेस है या लिमिटेशन है, राइट। थर्ड इज इट डज नॉट इंडिकेट द कंडीशंस। तो बहुत सारे केसेस में आपको जो कंडीशंस है, जैसे हमने देखा कैटलिस्ट कौन सा है, कितने प्रेशर पे हो रहा है या कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जनरल केस में जब प्लेन इक्वेशन लिखी रहती है तो उसमें रिएक्शन कंडीशंस भी बहुत बार मेंशन नहीं होती। सो इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर और प्रेशर तो फिर भी आपको मेंशन मिल जाएगा कि इतने टेम्परेचर, जैसे पिछली बार हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में 150 डिग्री पे वो हो रहा था और निकल कैटलिस्ट था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हमको नहीं मालूम, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। रेशियो मालूम चल जाएगा। नाउ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी जनरल केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है, अंडर विच रिएक्शन में टेक प्लेस। तो जनरली कॉन्सेंट्रेशन की एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन है जो हमको नहीं मालूम चलता। फिर फोर्थ, ये भी बहुत ही जेन्युइन लिमिटेशन है जनरली, जो आपको कोई भी इक्वेशन में आपको मेंशन नहीं होगी। इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज स्लो और फास्ट। मतलब वो रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, वो जल्दी खत्म हो रहा है या उसको एक दिन लग रहा है, एक वीक लग रहा है, एक साल लग रहा है, हमको नहीं मालूम चलता, ठीक है। तो ये जेन्युइनली ये सबसे बड़ी एक हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन की वीकनेस है। इट डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन वेदर द रिएक्शन इज स्लो और फास्ट और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, राइट। सम इक्वेशंस आर वेरी वायलेंट इक्वेशन। कुछ जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत वायलेंट होते हैं इमीडिएटली, जैसे एलपीजी को जैसे हम जलाते हैं या हमने सोडियम को पानी में डाला है ना, तो क्या होगा, एकदम से एक्सप्लोजन होता है बहुत ज्यादा, है ना। सो सम रिएक्शंस आर वेरी वायलेंट एंड दे अकर विथ एक्सप्लोजन। वंस अगेन दिस इज नॉट इंडिकेटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसके बारे में भी नहीं बताती। अब क्या हो गया, अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपके पास में है, आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो और अगर गलती से भी आपने उसको ट्राई कर लिया तो क्या हो सकता है, इट कैन रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट एंड इंजरी ऑल्सो। तो ये हमारे को नहीं बताता, ठीक है ना। सो इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट दी, फिर से ये एक फिर से बहुत ज्यादा एक लिमिटेशन है, एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। 6 पॉइंट जो है, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड और द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। इट ओनली गिव्स द रेशियो, ठीक है। जो पिछले में जैसे मैंने बताया, इफ आई टेक 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, अगर मैं 2 मोल्स लेता हूं लेड नाइट्रेट का, उसको हीट करता हूं तो मेरे पास क्या आते हैं, 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मेरे को ये रेशियो मिल रहा है, लेकिन मेरे को जब अगर एक इक्वेशन दी गई है तो मुझे नहीं मालूम चल रहा कि एक्चुअल अमाउंट में लेड नाइट्रेट का मैं कितना अमाउंट लिया गया है उस समय और प्रोडक्ट किस अमाउंट में बन रहे हैं। मेरे को सिर्फ क्या मिलता है, अगर मैं एक इक्वेशन देखता हूं एक रिएक्शन की, तो मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो के बारे में मालूम चलता है। एक्चुअल अमाउंट में कितने रिएक्टेंट्स थे, कितने कंज्यूम्ड हुए और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, ये मालूम नहीं चलता। सो वंस अगेन इट इज अ बिग लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हम कह सकते हैं इसको, राइट। सो नाउ लेट अस कम टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले आई वर्ड इक्वेशन, फिर वर्ड को हमने किसमें, केमिकल इक्वेशन में धीरे धीरे इवॉल्व हुई व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग द केमिकल सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज, राइट। फिर उसके बाद में कुछ इक्वेशंस क्या थी, कैसी थी, इन विच it was not following the law of conservation of mass. That means the total mass of the reactant was not equal to the total mass of the product or products form, right. Now this type of equation is known as skeletal chemical equation. And now we also know, we have already discussed in length that every chemical equation has to be balanced. Why? Because every chemical reaction obeys the law of conservation of mass, right. तो अगर कोई भी इक्वेशन है और वो अनबैलेंस्ड है, मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जिसमें मास ऑफ द रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ द प्रोडक्ट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन, राइट। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट. So what are balanced chemical equation? Those chemical equation in which the number of atoms of each element in the reactant and product side is equal, right.
or in other words we can say the total mass of the reactant should always be equal to the total mass of the product. In such equations are known as balanced chemical equation. अब बैलेंस करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हम ये एक प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो जाता है, 9th क्लास, फिर 10th, फिर जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे इन एवरी क्लास यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये इजी हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. राइट, पर्सन बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ क्या होगा, मैन नहीं, मैन और वुमेन दोनों को. ठीक है, so why chemical equations have to be balanced? Because mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Therefore, to follow the law of conservation of mass, which every chemical reaction does, every chemical equation should also be balanced. What is balancing of chemical equation? Chemical equation की balancing क्या है? So making the number of atoms of each element equal on both the sides. Both the sides मतलब reactant side और product side में, right, is known as balancing of chemical. अब balancing of chemical equation हम कैसे करते हैं? It is done by changing their coefficient. Coefficient को change करते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, so let me make you understand. अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे H2 जो है वो क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, और ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है, ये जो 2 नीचे की तरफ लिखा हुआ है हाइड्रोजन से थोड़ा सा जो बाद में, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट. एंड सबस्क्रिप्ट कैन नॉट बी चेंज, इसको हम नहीं चेंज कर सकते. क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्मूला का हिस्सा है. ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन में भी यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, क्योंकि ऑक्सीजन सिंपल O नहीं मिलता, ऑक्सीजन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ O2, तो हम 2 को चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे. तो सबस्क्रिप्ट को कभी चेंज नहीं करना है. सबस्क्रिप्ट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला. या तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, या वो कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. तो आपको क्या चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द कोएफिशिएंट. और कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके जस्ट पहले आपको एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लगाना है. अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है इसका मतलब 1 है. जैसे अगर x लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, 1x. वैसे ही अलजेब्रा में, तो वैसे ही अगर H2 लिखा हुआ है मतलब 1H2, 1 into H2. सिमिलरली O2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 1 into O2. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसकी जगह 1 की जगह 2, 3, 4 जितना भी बैलेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड है वी कैन डू दैट. राइट, तो अब बैलेंसिंग जो होती है वो कैसे होती है, बाय चेंजिंग द कोएफिशिएंट, है ना. सबस्क्रिप्ट इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, right, formula of the molecule or the formula of the compound, it cannot be changed. What can be changed is the coefficient. coefficient को change कर सकते हैं हम product side में और reactant side में, और उनको change करके हम क्या कर सकते हैं, we can balance a skeletal chemical equation. So this is what we are going to practice in the coming session, है ना. हम coming session के अंदर यही बात करने वाले हैं, how to balance a skeletal chemical equation. Right, so let us go further. Okay. So balancing of chemical equations. Now balancing of chemical equations can be done by 2 methods. ठीक है, अभी हम जो मेजर मेथड अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो 10th में, 9th, 10th, 11th में जो हम जनरल वे में करते हैं, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, एक और दूसरा मेथड भी है विच इज नोन एज द एल्जेब्रिक मेथड. ठीक है, हम ये दोनों मेथड्स ट्राई करने वाले हैं. मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड नहीं बताऊंगा, मैं दोनों बताऊंगा, और दोनों में लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं डिस्क्राइब करके. राइट, एंड दिस वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सेशन. सो द कमिंग सेशन, एवरी सेशन इज इंपॉर्टेंट, बट द कमिंग प्रेजेंटेशन विल बी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. थैंक यू very much. I hope that you have understood. Thank you.